Good afternoon, students. In the last class, we discussed about the four sector economy, okay, net export function, and there are numbers of students who have the query about the previous classes, and so we will discuss or revise the syllabus in our last classes. I will teach the new topic half an hour, and in the last classes half an hour we will revise the syllabus so that the student who no, who did not take the class can get the benefit about the revision classes, so that they have the idea of their complete syllabus. So student not getting panic if they have left their classes and did not take the classes, and what about that. So we will revise the syllabus in our last classes, so all the students must take the classes properly, so that if they have any problem in the syllabus or the classes which is left in left, so they can get the benefit in the last classes. We will revise the syllabus in the last classes. Okay, so now we discuss about the topic, today's topic. So in the last class we completed the four sector economy, and we studied about two sector economy, three sector economy, and four sector economy. In the last class we studied about the four sector economy. ठीक है, फोर सेक्टर में हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी रिलेशन होता है, ठीक है, एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज ओपन इकोनॉमी. ठीक, उसमें हमने पढ़ा था नेट एक्सपोर्ट फंक्शन. नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द जीडीपी एंड the net export, and there is a inverse or indirect relation or inverse relation between or opposite relation between the GDP and the net export. Okay, as GDP increases, net export falls and vice versa. ठीक है, then we discuss about the equilibrium level in four sector economy. फोर सेक्टर में कंडीशन देखो तीनों सेक्टर में सेम रहती है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और आउटपुट, और बस डिफरेंस क्या है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड का. टू सेक्टर में C प्लस आई, थ्री सेक्टर C प्लस आई प्लस जी, एंड फोर सेक्टर C प्लस आई प्लस जी प्लस NX. ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था. एंड नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज नेशनल इनकम. National income, which we studied in the 12th class also. ठीक है, and or the student who not studied in 12th, they do not have problem, they, because I will teach all the aspect of the national income. ठीक students, तो national income first we generally discuss के what is national income. National income is the total, generally is the total income of a country. कि एक कंट्री की टोटल इनकम या इकोनॉमी की टोटल इनकम क्या होगी, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम. ठीक, तो नेशनल इनकम बेसिकली द टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी. एक होता है डोमेस्टिक इनकम. ठीक, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में फर्क होता है कि अगर हम जनरली अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इनकम होगा द इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कि आउटसाइड से कोई भी हमने नीदर इंपोर्ट नॉर एक्सपोर्ट, तो वी कैन से कि सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर जितना भी हमने प्रोडक्शन करी है. ठीक है, और नेशनल में क्या होता है इनकम गेट आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, कि हमने अनदर कंट्री से भी इनकम गेन की है, तो वो हमारी कहलाती है नेशनल इनकम. ठीक है, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम. Then we will study it in numerical form also. We will do some numericals also, and the next one is first we discuss some basic point of national income, so that the student can understand the basics of the national income and they do not have any problem about that.
तो दिस इज सम, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, as we know that कि there are basically 3 methods of calculating national income, कि हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। जैसे यू विल, इफ द स्टूडेंट स्टडीड इन 12th क्लास, तो वी हैव द 3 methods: income method, expenditure method and production or output method। ठीक है, तो नेशनल इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, national income is the sum of money value of net flow of all final goods and services produced by normal resident of a country during a period of account। कि national income क्या है हमारी, कि national income is the sum of money value of net flow, कि money value है net flow, जितना भी flow होता है of goods and services produced by normal resident of a country, कि जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है वो जितना भी प्रोड्यूस करता है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट में मे बी अ पर्सन, मे बी अ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। भी पढ़ेंगे भी कि फैक्टर इनकम क्या होती है। अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री in the form of rent, wages, interest and profit in an accounting year। कि नेशनल इनकम क्या है, सम ऑफ फैक्टर इनकम है। देखो 2 तरह की इनकम होती है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, फैक्टर इनकम और दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम में होता है द इनकम जनरेट by providing some productive services, means both side transfer, one provide good or service, another provide income। ठीक है, जैसे सपोज if a person is doing a work in a factory, so he will get a salary or wages like that। ठीक है ना, तो that is factor income because that person provides service to the factory, labor service, and the owner of the factory provide him salary। तो this is the factor income, both sided transfer, दोनों तरफ से ट्रांसफर हो रहा है कि एक सर्विस दे रहा है, दूसरा उसको पेमेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर इनकम होती है। एक होती है ट्रांसफर इनकम जो नेशनल इनकम में नहीं आती, जैसे स्कॉलरशिप, और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो नथिंग हैज टू बी पेड फॉर दीज इनकम इन रिटर्न इन प्रेजेंट एज वेल एंड इज फ्यूचर। ना तो हम प्रेजेंट में कुछ देते हैं उसके बदले में, और ना ही फ्यूचर में। तो फैक्टर इनकम में ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal resident of a country in the form of rent, wages, interest and profit in an accounting year। कि नेशनल इनकम क्या है, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स है earned by normal resident of a country, normal resident of a country in the form of rent, wages, interest and profit in an accounting year। From expenditure point of view, so national income is the net output of commodity and services flowing during the year from the country's productive system into the hands of ultimate consumer or into the net addition to the country's capital goods। क्योंकि देखो जो फाइनल गुड्स होती है, अभी डिस्कस भी करेंगे कि फाइनल गुड्स 2 तरह की होती है हमारी, देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो नेशनल इनकम इज द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटी सॉरी एंड सर्विस फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रोडक्शन यूनिट से इनटू द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर और इनटू द नेट एडिशन टू कंट्रीज कैपिटल गुड्स, या नेट एडिशन जितना भी होता है कंट्रीज कैपिटल गुड्स में। ठीक है, अब एक देखो, अब आ गया कॉन्सेप्ट फाइनल गुड्स। ठीक, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? तो ऑल गुड्स विच आर मीन्ड आर ईदर फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। कि ऑल गुड्स विच आर मीन्ड ईदर ए फॉर कंजम्पशन, कि वो सारे गुड्स
जो कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर द्वारा खरीदे जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म आर कॉल्ड फाइनल गुड। तो देखो इसमें दो चीजें निकल के आई, एक तो कंज्यूमर गुड्स हो गया और एक कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि जो फर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेगी वो कैपिटल गुड्स होता है। या गुड्स विच डू नॉट गो अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। या वो गुड्स जो आगे अब किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जाएंगे। अब वो दैट मीन्स वी कैन से फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर टू टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। पहले इसी को करते हैं फिर इंटरमीडिएट करें। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स ऑल गुड्स विच आर मींट ईदर फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। कि वो सारे गुड्स जो या तो कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और फर्म के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन हो गया तो कंज्यूमर गुड्स या वी कैन से कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। गुड्स विच डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। कि जो गुड्स किसी भी और ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाते या प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज नहीं होते, वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं। या ये भी कह सकते हैं गुड्स विच क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं, तो फाइनल गुड्स कहलाते हैं वो। फाइनल गुड्स आर टू टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो पहले आपको हम डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस अबाउट कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स goods which are consumed by ultimate consumer or which meet the immediate need of the consumer directly are called consumption or consumer goods। कि वो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली पूरा करते हैं, उसकी जो भी वांट है, जो भी उसकी इच्छा, उसको कंप्लीटली डायरेक्टली फुलफिल कर देते हैं, दैट इज नोन एज कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल फूड, शर्ट, पैंट, टीवी सेट्स, रेडियो एटसेट्रा। जैसे सपोज अब हमें, अभी तो खैर पैंडेमिक है तो हम रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जा सकते, लेकिन ठीक है ना, तो फिर भी है कि जैसे अगर सपोज वी आर हंग्री तो वी गो टू द रेस्टोरेंट एंड टेक द मील एंड वी आर वांट्स फुली सेटिस्फाइड, तो दैट इज कंज्यूमर गुड्स। या जैसे फूड आइटम हो गए, शर्ट्स हैं, पैंट, टीवी सेट्स, रेडियो, ठीक, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर हम यूज करते हैं। हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स अभी एक चीज और डिस्कस करेंगे कि गुड्स ये नहीं, अगर हम कहें कि हमेशा वो चीज, जैसे ब्रेड है सपोज, तो वो कंज्यूमर गुड्स ही होगी, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता, अभी और डिस्कस करेंगे। सॉरी। तो कंजम्पशन गुड्स, गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर or which meet the immediate needs of the consumers directly are called consumption or consumer goods. For example, food, shirt, pant, TV sets, radio, etc. all are consumer goods. Next is capital goods. Capital goods, goods which are bought not for meeting immediate needs of consumer. कि वो गुड्स जो immediate needs of consumer fulfill नहीं करते, but for प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स या और गुड्स बनाने में यूज होते हैं, आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। जैसे मशीनरी है, टूल्स है, प्लांट, बिल्डिंग, तो ये सारे कैपिटल गुड्स हैं विच आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एंड देखो कैपिटल गुड्स में क्या है कि अगर उसने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो मशीनरी यूज अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब इसमें एक आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, all goods which are the goods which are used A as raw material for further production of other goods or B for resale in the same year are known as intermediate goods। कि वो सारे goods जो या तो raw material के लिए यूज किए जाते हैं for other production और resale in the same year या उसी साल में resale कर दिए जाते हैं, are called intermediate goods। जैसे फॉर एग्जांपल अब रॉ मटेरियल, ठीक है, एक ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। देखो ब्रेड जो है फाइनल गुड्स भी है
एंड ब्रेड इज ए इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कैसे है? बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द परचेजर हाउ दैट पर्सन इज यूज इट, कि वो कैसे उसको यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ब्रेड है, सपोज if we purchase bread for our family, तो this is a consumption, ठीक है। but this bread is purchased by a restaurant owner for making the sandwiches, for making the जैसे bread पकोड़ा etc, तो at that time that is become the intermediate goods। और एक तो ये हो गया कि एज रॉ मटेरियल हो गया, और रीसेल इन द सेम ईयर का एग्जांपल, जैसे ब्रेड इज परचेज्ड बाय द ग्रोसरी शॉप फ्रॉम द होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, एंड बिकॉज द ग्रोसरी ओनर या ग्रोसरी शॉप ओनर परचेज द ब्रेड फॉर रीसेल, क्योंकि वो उसको खरीदेगा और आगे बेच देगा, तो दिस इज ए इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के दैट गुड्स, क्योंकि कई बार रीजनिंग टाइप के 4-5 वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि इज ब्रेड इज ऑलवेज, या इज सपोज कॉटन है, जैसे कॉटन इज ऑलवेज अ इंटरमीडिएट गुड्स या ऑलवेज फाइनल गुड्स, तो दैट इज डिपेंड ऑन द हाउ द परचेजर यूज इट, कि वो उसको किस तरीके से यूज कर रहा है, किस फॉर्म में यूज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिटरमाइंड होता है कि वो क्या, वो कंज्यूमर गुड्स है और इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स, ऑल गुड्स विच आर यूज्ड ए एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, कि वो और प्रोडक्शन करने के लिए अदर गुड्स को रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, और बी फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, और गुड्स विच आर यूज्ड during a production process of production of other goods or resale in the same year are called intermediate goods, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि आप पढ़ोगे नेशनल इनकम में जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी, तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट रेफर टू ऑल फैक्टर पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट और फर्म to the factors of production for rendering productive services in the production of goods and services. Okay, factor cost refers to all factor payments made by producing unit, कि जो भी producing unit है जितनी भी factor payments कर रही है, और firm to the factors of production for rendering productive services, कि जितना भी उसने खर्चा किया, पेमेंट की है for rendering productive services, or firm to the factors of production for rendering productive services in the production of goods and services, कि फैक्टर कॉस्ट जितनी भी उसने फैक्टर पेमेंट की, जो किसके लिए, जितना भी उसने फर्म को, किसी ने फैक्टर प्रोडक्शन को, यूनिट को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट होता है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फैक्टर कॉस्ट। पहले एक बार ये डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। और एक होता है मार्केट प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच कमोडिटी सोल्ड एंड परचेज इन द मार्केट, कि अगर ये वो प्राइस होता है जिस पर एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल और परचेज होता है। एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे थे हम। तो फैक्टर कॉस्ट आपको बताया कि जितनी फैक्टर पेमेंट करता है प्रोड्यूसिंग यूनिट, जो उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है, जैसे लेबर को उसने वेजेस पे किया, ठीक है, इंजीनियर को सैलरी दी है, तो वो सारा उसमें इंक्लूड हो जाता है, प्लस उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो इसको एक हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को एक एग्जांपल से वी कैन एक्सप्लेन इट, कि सपोज जैसे आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा है, इफ यू परचेज अ मोबाइल फोन, तो अगर आप देखोगे सपोज इट्स प्राइस इज 15,000 रुपीज, इट्स प्राइस इज 15,000 रुपीज, ठीक है। इफ यू चेक इट्स बिल, तो हमने देखा उस पर टैक्सेस वगैरह भी लगे हुए थे, तो सपोज जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी वगैरह, वो 3,000 रुपीज उस पर टैक्स लगा है, तो 15,000 इज इट्स मार्केट प्राइस
एंड 12,000 टैक्स हटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो 12,000 इज फैक्टर कॉस्ट, तो उस फैक्टर कॉस्ट में उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, क्योंकि नेशनल इनकम पे बहुत आता है और इन दोनों का डिफरेंस एनआईटी होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी थोड़ा न्यूमेरिकली भी डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लिखे, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे डेप्रीसिएशन, आपने अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मीन्स होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स। डेप्रीसिएशन का मीनिंग होता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन भी आता है इसमें, डेप्रीसिएशन होता है इट इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूसेज ऑफ असेट्स और पासेज ऑफ टाइम और वियर एंड टियर ऑफ असेट्स। कि डेप्रीसिएशन का में कि ये इसकी जो असेट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाना, उसका कारण क्या है कि टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है हम उसको यूज कर रहे हैं, या उसकी नॉर्मल वियर एंड टियर है, उसके रख रखाव में जो खर्चा हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मीन्स होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम और वियर एंड टियर ऑफ असेट्स और यूसेज ऑफ असेट्स। जैसे सपोज अगर हम उसको यूज भी नहीं करते तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम पास हो रहा है, टाइम बीत रहा है। जैसे सपोज अगर किसी पर्सन ने एक कार खरीदी है 1 लाख रुपए की, इफ ए पर्सन परचेज द कार ऑफ ₹1 लाख, तो 1 लाख की उसने कार परचेज की है, तो आफ्टर 1 लाख की नहीं 10 लाख की, सॉरी, इफ ए पर्सन परचेज अ कार फॉर ₹10 लाख, तो आफ्टर 1 ईयर इट्स कार वैल्यू नॉट, आइदर ही इज नॉट यूजिंग द कार, चाहे उसकी हमेशा खड़ी रहती है, बहुत कम यूज हुई है, ना के बराबर यूज हुई है, तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इवन दो अगर आप शोरूम से कार खरीद के लाओगे और अगले दिन भी बेचोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो दैट इज डेप्रीसिएशन। कि डेप्रीसिएशन जो होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम और यूसेज ऑफ असेट्स, ठीक है। एक इसमें आता है हमारा फैक्ट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे वो समझेंगे हम, उसमें भी क्लियर करा दूंगा। अब ये कुछ हमारे और भी टॉपिक है, जैसे स्टॉक। देखो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर के स्टॉक से अभिप्राय उस वेरिएबल से है, उससे है, उस वेरिएबल से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, कि स्टॉक इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कि 31 जनवरी 2011 को, या कोई भी ईयर ले लो आप, कि गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है आपको। जैसे सपोज एक शोरूम ओनर है, उसके पास 10,000 रेफ्रिजरेटर रखे हैं सपोज, ठीक है, या जो एक प्रोड्यूसर है उसके पास 10,000 स्टॉक रखा है, तो दैट इज स्टॉक। तो ये एक जो मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ टाइम है, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। जैसे नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय संपत्ति, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना आरबीआई ने, जैसे हम कहें कि जो है आरबीआई ने जैसे 1 जनवरी 2010 को इतना मनी सप्लाई करा कि नई करेंसी मार्केट में दी, तो मनी सप्लाई इज ऑल्सो ए स्टॉक वेरिएबल। एक होता है फ्लो, फ्लो इज मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें दोनों में फर्क है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है स्टॉक, और फ्लो इज पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो इज मेजर्ड एट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। इट इज अ मेजर वेरिएबल मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रवाह चर, या इसको कह सकते हैं वेरिएबल से, उस वेरिएबल से होता है अभिप्राय जो एक समय अवधि में, टाइम पीरियड में मेजर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द ईयर 2020, कि 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो वो पूरा पीरियड ऑफ टाइम है, कि जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक, या टेकिंग नंबर ऑफ बर्थ इन 2010, कि 2010 में कितने नंबर्स ऑफ बर्थ हुई या डेथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भैया पेंडेमिक चल रहा है, तो अगर मेजर करें कि पेंडेमिक में के पिछले साल से लेके और इस साल तक कितनी डेथ हुई है, तो दैट इज मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या कहलाता है, फ्लो होता है, ठीक है। फ्लो और पीरियड ऑफ टाइम मे बी अ डे, मे बी अ मंथ, मे बी अ ईयर, दैट इज डिपेंड, मे बी अ डिकेड, मे बी अ सेंचुरी, ऐसे,
ठीक है, तो दैट मीन्स इसके अंदर कोई एक प्रॉपर मेजर नहीं है इसके टाइम पीरियड यही लेंगे हम, वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें, जैसे कि स्टॉक जो है पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है और दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। टाइम पीरियड इसके अंदर कोई स्पेशल टाइम पीरियड नहीं होता, और इसके अंदर होता है टाइम पीरियड एक टाइम का पूरा है, जैसे 1 ईयर, 1 मंथ, 1 डे, और इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मीन्स स्टैटिक कॉन्सेप्ट, और इसे डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसमें एग्जांपल है जैसे 1339 को पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, जैसे 2020 में नंबर्स ऑफ कार इन दिल्ली, मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, इस तरीके से। और इसमें पीरियड ऑफ टाइम है, तो टेकिंग बर्थ इन 2009 के 2009 में कितनी बच्चों को जन्म हुआ बच्चों का, या डेथ्स कितनी हुई है, इस तरीके से। तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है इट इज ए फ्लो वेरिएबल, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, पूरा एक साल के लिए मेजर होता है। बाकी ये इतना नहीं है हमारे में। देखो जैसे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम रेफर टू द इनकम विच इज गेट बाय प्रोडक्शन यूनिट फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, कि इसका अर्थ यह है कि साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन सेवाओं को प्रदान के लिए जितनी भी फैक्टर सर्विसेज दी जाती है उसके बदले में जितना भी रिटर्न आता है, जो भी मिलता है, वो हमारा कहलाता है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज गेटिंग नथिंग प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस इन रिटर्न, कि कोई भी उत्पादन सेवा का मतलब प्रोवाइड नहीं की जाती। और फैक्टर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल, सॉरी हाँ, फैक्टर इनकम included in national income as well as in domestic income. Transfer income not included in national income as well as domestic income. और ये जो है जो फैक्टर इनकम है इट इज अर्निंग है, और ये क्या है, एक रिसीप्ट ऑनली है, जस्ट लाइक अ रिसीप्ट है। और फैक्टर इनकम का एग्जांपल है हमारा जैसे सैलरी, वेजेस, और ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जैसे हिंदी में दिया हुआ है ये उदाहरण है इनके, फैक्टर इनकम के किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। और ये ट्रांसफर इनकम होता है छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो यहाँ नहीं आती, वो हमारी फैक्टर इनकम होती है और नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होती है, बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पास्ट। सभी को नहीं दी जाती रिटायरमेंट पेंशन, जिसने सर्विस दी है उसको मिलती है। अब जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज देन गेटिंग द रिटायरमेंट पेंशन, तो रिटायरमेंट पेंशन अलग चीज है। और जो ये हमारी ओल्ड एज पेंशन है ये सबको मिलती है जिसकी एज 60 हो जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन जिसको हिंदी में कहते हैं। और ये ट्रांसफर इनकम है, और ओल्ड रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है इस तरीके से। ये हमने किया था फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, भोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हिंदी में। तो अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग की जाती हैं, आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। और मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स उन वस्तु कहा जाता है जो पुनः बिक्री, रीसेल और यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या आगे उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, दोनों में इंक्लूड होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं ना तो राष्ट्रीय में इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम में, नीदर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय में। मांग, अंतिम वस्तुओं की मांग डायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि यह इच्छाओं को डायरेक्ट फुलफिल करती है। देयर डिमांड इज डायरेक्ट बिकॉज इट फुलफिल द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। और दो मध्यवर्ती मांग की वस्तु, इनकी मांग व्युत्पन्न होती है यानी डेरिवेटिव डिमांड होती है, बिकॉज इट्स डिमांड डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स, कि कितना प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल की डिमांड होगी। और ये है जैसे फाइनल गुड्स आर क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री,
यह उत्पादन सीमा के बाहर चली जाती हैं, यह उत्पादन सीमा के भी यानी कि अंदर ही रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे परिवार तथा उपभोग के लिए क्रय किया गया दूध, निवेश क्रय की गई कार, निवेश के लिए क्रय की गई कार। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा दिया हुआ है कि निवेश के लिए क्रय की गई कार। जैसे सपोज ओला वाला जब कोई कार खरीदता है तो वो जो कार खरीदेगा वो इन्वेस्टमेंट पर्पज होगी, ठीक है। या कोई ड्राइवर कार खरीद रहा है और वो गाड़ी चला रहा है ओला में, तो वो कौन सी कार हो गई, इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन वो भी फाइनल गुड्स है। और अगर हम सॉरी अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन पड़ता है, उपभोग के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स में जैसे जैसे डेयरी की दुकान द्वारा इस्तेमाल दूध, जो डेयरी है, डेयरी शॉप है, तो वहां पर दे परचेज मिल्क फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, वो तो तभी सेल कर देते हैं। और कारखानों के आगे उत्पादन के लिए इस्तेमाल कोयला, जैसे कोल इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, तो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स, फैक्टर इनकम। अब है कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स फुलफिल ह्यूमन वांट्स, कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली फुलफिल ह्यूमन वांट्स। यह मानवीय आवश्यकताओं को सीधा संतुष्ट करती है, इसलिए इनकी प्रत्यक्ष मांग होती है, पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स यह मानवीय आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से पूरा करती है, इसलिए इनकी व्युत्पन्न मांग होती है। कि जो कैपिटल गुड्स है दे आर नॉट डायरेक्टली फुलफिलिंग द ह्यूमन वांट्स बट इनडायरेक्टली, क्योंकि जैसे सपोज अभी कोई गुड बनाना है तो उसके लिए मशीनरी की डिमांड हो रही है, तो मशीनरी हमारी वांट पूरी नहीं करी, लेकिन मशीनरी जो प्रोडक्शन आ रहा है इट विल फुलफिल आवर वांट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता। आप लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट दे कैन राइट, all the student must take a pen and register so that they can note down all the points and make their own notes with the help of the, so don't student mostly ask for the notes that you can make your own handmade notes, so that you have the practice and you have the knowledge and you can write very good in the paper, because most of the students have not the practice of writing, they do not have the practice of writing. So when they are writing in the paper, even though they have the knowledge, but they cannot write in the proper way. So all the students must make their own notes so that you have the practice of writing. आपको writing की भी practice है, वरना आप क्या है, आप देख के बस पढ़ लोगे, समझ लोगे, but while you writing in the paper there are number of mistake you will commit it. So that if you write in, you make your notes and read it, so you find your own mistake, so that you will not committed the mistake in the exam, ठीक है। तो make your own notes. और there are numbers of students having the problem of the classes which they have left. तो आपने जितनी क्लासेस लेफ्ट हो गई हैं तो डोंट पैनिक, we will revise the syllabus in our last classes. So in the last classes I will teach half an hour and revise the syllabus also, so that the numbers of students having the problem कि हमारी कुछ syllabus रह गया है, they did not take the class, so don't panic about that. So we will revise the syllabus and take the classes properly, regularly, ठीक है। तो उत्पादन क्षमता हो गया। तो जो कंज्यूमर गुड्स है दे डू नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल गुड्स इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ये उत्पादन क्षमता को बढ़ाती हैं, ठीक है। और जो कंजम्पशन गुड्स है वो नहीं बढ़ाते। तो इसीलिए क्योंकि देखो अगर मशीनरी वगैरह मशीनरी अगर प्लांट हो रही है, उसका प्रोडक्शन हुआ, नई नई मशीनरी लग रही, इक्विपमेंट्स है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और लाइफ स्पेन, देखो जो हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जनरली। तो ड्यूरेबल होती है उस लाइफ स्पैन इज मोर, जैसे एलईडी है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, तो इनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। नॉन ड्यूरेबल जैसे क्रॉकरी है, विद इन अ ईयर वो खत्म हो जाते हैं, तो वो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ का स्पैन होता है जो 1 साल से ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं मोस्टली दे हैव द स्पैन मोर देन 1 ईयर। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स का।
ठीक है, और कैपिटल गुड्स का भी दे दिया। तो इंग्लिश स्टूडेंट कैन राइट, जैसे कार का एग्जांपल दिया है, उपभोग वस्तु होती है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कार है, अब कार जो है हमारी, देखो कार को हम इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज कर सकते हैं, हो सकती है फाइनल गुड्स भी हो सकती है, और क्या कह सकते हैं कैपिटल गुड्स भी हो सकती है। जैसे इफ यदि कार परिवार द्वारा खरीदी गई है तो वो क्या बन जाएगी, कंज्यूमर गुड्स। इफ कार इज परचेज बाय हाउस होल्ड तो वो कंज्यूमर गुड्स बन गई, कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पस है। कैपिटल गुड्स इफ कार इज परचेज बाय ड्राइवर, यदि टैक्सी ड्राइवर द्वारा कार खरीदी गई है या फर्म द्वारा कार में प्रयोग के लिए खरीदी गई है। जैसे इफ या जैसे सपोज अब कार खरीदी है किसी फर्म ने, तो वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि उसके वो यूज होगी एज अ प्रोडक्शन पर्पस, कि भाई उसमें गुड्स वगैरह होंगे, या जैसे ऑफिसर्स वगैरह आ रहे जा रहे हैं तो उनको पिक एंड ड्रॉप करना है, इस तरीके से, तो ये कैपिटल गुड्स हो जाएगी। और इंटरमीडिएट गुड्स यदि सेना के इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा खरीदी गई है, जो क्या बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक सर्विस जनरेट होगी, डिफेंस सर्विस, तो उसको जनरेट करने के लिए जैसे आर्मी वगैरह ने खरीदी है। यदि कार डीलर पुनः, या इससे अच्छा एग्जांपल ये वाला ज्यादा अच्छा है, इफ कार परचेज बाय डीलर फॉर रीसेल। अब ये जो कार डीलर्स होते हैं, दे परचेज द कार फॉर रीसेल, तो ये क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड। तो सेम गुड एज यू, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है, कैपिटल गुड्स भी हो सकती है, और फाइनल गुड्स भी, सॉरी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द परचेजर, कि परचेजर उसको किस तरीके से यूज कर रहा है, तो डिपेंड ऑन दैट। और एक ही आता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ कि दैट पर्सन, एक व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी यदि वह उस देश में एक वर्ष से अधिक अवधि में सामान्यतः रहता है, और उसका आर्थिक केंद्र हित, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री। देखो लेकिन हम वो जो रेसिडेंटशिप होती है, जिसको सिटीजनशिप बोलते हैं, वो इससे अलग होती है, उसको इससे मत मैच करना। देखो यहाँ पे एक पॉइंट भी है, ठीक है, तो सिटीजनशिप अलग है, और जो रेसिडेंटशिप हम जो सामान्य निवासी जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं वो अलग होता है, क्योंकि सिटीजनशिप का तो अलग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, कि उसका पूरा जब उसको फुलफिल करेगा तो वो सिटीजनशिप में आएगा। सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट वे, और ये जो यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली, वो अलग चीज होती है। तो एक व्यक्ति एक देश की सामान्य निवासी है यदि वह उस देश में एक वर्ष से अधिक अवधि से सामान्यतः निवास करता है, और उसी देश में उसके आर्थिक हित का केंद्र है। कि इफ ए पर्सन लीव मोर देन द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई ऑन दैट कंट्री। जैसे पेप्सी है, पेप्सी नॉन रेसिडेंट कंट्री है, बिकॉज पेप्सी का जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दैट इज लाई इन द यूएस, बिकॉज ये यूएस बेस्ड है कोक। तो अब हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, बट देखो जो अब आपने पढ़ा था, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज समझने की है, कि अगर हम पेप्सी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो बाहर से चीजें ज्यादा की है, तो हमारा सारा पैसा मनी जो है वो बाहर जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है दे टुक देयर ओन कंट्री। तो इसीलिए इसीलिए फिर इकोनॉमी में लीकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम सारा पैसा तो विदेशियों को दे रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल का हम लोग बोलते हैं कि इतना पेट्रोल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कम वैसे देखा जाए तो अगर जर्नल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेसिडेंशियली पेट्रोल नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज इन आवर कंट्री क्रूड ऑयल इज नॉट प्रोड्यूस, वी प्रोड्यूस ओनली 10% मैक्सिमम, 90% वी इंपोर्ट। इफ वी इंपोर्ट तो दैट बिकम लीकेजेस फॉर आवर कंट्री। तो ये इकोनॉमी के लिए बैड है। हमें लगता है कि पेट्रोल नहीं यूज कर रहे तो पता नहीं क्या हो रहा है, अगर उसका हम दूसरा पहलू देखें तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जापान है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि बहुत कम गाड़ियां यूज करते हैं, क्योंकि वो गाड़ी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन पेट्रोल तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्रूड ऑयल, तो दे आर मोस्टली यूजिंग साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उससे पेट्रोल की कंजम्पशन कम। ठीक है, लेकिन ये हम लोग नहीं सोचते, इसलिए हमारे देश में इतना जो है हम लोग एक पॉइंट सोचते हैं, दूसरा नहीं सोचते। ठीक है, तो भारत, तो ये हमारा नॉर्मल रेसिडेंट की बात है। जैसे भारत में एक वर्ष से अधिक रह रहे
चाइनीज जो पर्सन है वो एक सामान्य निवासी है, परंतु वो एक नागरिक नहीं है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट करिए, इफ ए चाइनीज लिव मोर देन 1 ईयर तो दैट पर्सन इज आर नॉर्मल रेसिडेंट, बट दैट इज नॉट द सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री, उसके पास सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, तो सिटीजनशिप और नॉर्मल रेसिडेंसी अलग अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और देखो जो अब ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स जो न्यूमेरिकली में हमको वी मस्ट क्लियर अबाउट दैट, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होते तो न्यूमेरिकल अगर पेपर में कई बार आ जाए तो वी कैन नॉट सॉल्व न्यूमेरिकल इजीली। ठीक है, तो फर्स्ट वी डू सम बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले हम क्या करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट वी डू सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये देखो, दिस इज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है नेट और ग्रॉस। नेट और ग्रॉस, नेट और ग्रॉस इज रिलेटेड डेप्रिसिएशन। किससे रिलेट करता है ये, डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन मींस द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, देखो जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, तो ग्रॉस और नेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको न्यूमेरिकल फिर आगे जो मेथड है, जैसे इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर है, वैल्यू एडिड है, तो इनको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है। ये हमारी कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बेस है। अगर जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये हमारे पिलर्स हैं। अगर ये पिलर हमको नहीं समझ में आएंगे तो हमारी बिल्डिंग क्लियर हमारी नहीं बन पाती। तो सबसे पहले आता है नेट और ग्रॉस। ठीक है, नेट और ग्रॉस में रिलेशन होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम और यूसेज ऑफ असेट। कि असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि जैसे हम असेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो नेट और ग्रॉस। तो अगर आपको नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रॉस और नेट का, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कई बार ऐसे भी निकालना पड़ता है, वी नीड टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट करके। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स, तो ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट यू कैन राइट इट so that there will be no problem for you. First concept clear, net or gross depreciation related. Net is equal to gross minus depreciation, gross is equal to net plus depreciation. Depreciation is equal to gross domestic fixed capital formation minus net domestic fixed capital formation. Second concept आता है domestic और national. नेशनल बिगर कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक स्मॉलर या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में होता है द इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। नेशनल में डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस इनकम जनरेट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक। अच्छा, नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेशन होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका रिलेशन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI। तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक इज इक्वल टू, क्योंकि नेशनल में क्या है, डोमेस्टिक जितनी अपनी कंट्री में इनकम जनरेट हो गई प्लस इनकम जनरेट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल निकालना है, इफ यू फाइंड नेशनल, डोमेस्टिक माइनस NFIA, सॉरी नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अच्छा, एक देखो जो नेट वर्ड आया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फॉर्मूला फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, कि जितना हमने फॉरेन से इनकम गेन की माइनस पेमेंट करके। और थर्ड इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, हाँ एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो अभी हमने कहा भी था फैक्टर कॉस्ट जितनी भी उसने फैक्टर पेमेंट की है, मार्केट प्राइस में इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स जनरली अब हमारे पास जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स whose liability to pay the tax falls on one person and burden falls on another person. That means the burden of indirect tax can be shifted. या indirect tax imposed by the government on production of goods and providing services. कि गुड्स के प्रोडक्शन पे या जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एंड द इनडायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। इसमें लायबिलिटी एक ही होती है, बर्डन किसी और। जैसे लायबिलिटी किसकी है, सपोज इफ वी आर टेकिंग वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट एंड टेकिंग द मील, तो उसमें हमने बिल पे किया, सपोज 2000 रुपीज का बिल है और उसमें 300 टैक्सेस है, तो वो 300 टैक्सेस लायबिलिटी टू पे द टैक्स रेस्टोरेंट ओनर एंड बर्डन फॉल्स ऑन अस कंज्यूमर्स। ठीक है, तो नेट इन और सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर एज वेल टू द कंज्यूमर्स। जैसे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ऐसे ही एलपीजी सिलेंडर पे या गवर्नमेंट पुअर पर्सन को वीट प्रोवाइड करती है एक सब्सिडाइज रेट, तो इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा हिंदी में भी है, इसको भी कर लेते हैं। वैसे न्यूमेरिकल तो इंग्लिश में ही थोड़ा, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल अगर हिंदी में कर रहे हैं तो वी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट इन हिंदी ऑल्सो। तो राष्ट्रीय नेशनल इनकम नेट ग्रॉस, यानी कि नेट होता है शुद्ध, सकल ग्रॉस। तो मूल्यह्रास, इनका रिलेशन है, मूल्यह्रास होता है कि जैसे हम किसी असेट्स को यूज करते हैं तो उसका धीरे धीरे उसके वैल्यू में कमी आती है, या टाइम पास होता है, वियर एंड टियर घिसावट होती है, तो वो मूल्यह्रास होता है। तो शुद्ध निकालना है तो सकल माइनस मूल्यह्रास, और सकल बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन सकल घरेलू पूंजी निर्माण माइनस शुद्ध घरेलू, यानी सकल माइनस शुद्ध, वो कहलाएगा डेप्रीसिएशन, मूल्यह्रास। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेशनल, राष्ट्रीय, घरेलू, डोमेस्टिक। तो इसमें रिलेशन है एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो राष्ट्रीय बराबर घरेलू प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और घरेलू इज इक्वल टू राष्ट्रीय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। घरेलू बराबर राष्ट्रीय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई, यानी कि जितना हमने उनसे इनकम गेन की माइनस जितनी पेमेंट कर दी। तो इंग्लिश में होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट है साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट और बाजार। ठीक है, बाजार साधन लागत, इनमें रिलेशन होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी। तो बाजार कीमत बराबर साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और साधन लागत बराबर बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आर्थिक सहायता सब्सिडी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर होता है जिसमें कर की जो लायबिलिटी एक पर्सन की होती है और बर्डन फॉल्स ऑन अनदर पर्सन, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस are given, indirect taxes are charged by the government on of production of goods and services। कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर लगाए जाते हैं। और आर्थिक सहायता या इसको अनुदान भी कहते हैं हिंदी में, सब्सिडीज इंग्लिश में। तो ये सरकार द्वारा उत्पादकों को या उपभोक्ताओं को
प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी उत्पादकों की लागत कम हो और उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट which we are doing। ठीक है, तो अब इसमें देखो रिलेटेड सम न्यूमेरिकल्स भी हैं, जैसे ये है हमारा कैलकुलेट, तो यू कैन राइट द न्यूमेरिकल, तो कैलकुलेट NNP-FC, GNP-MP, NDP-MP फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जैसे GDP-MP है 2000, इनडायरेक्ट टैक्स 200, डेप्रीसिएशन 300, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 और सब्सिडीज 25। तो यू कैन राइट द न्यूमेरिकल, कैलकुलेट NNP-FC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में बोलते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एंड GNP-MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, NDP-MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। GDP-MP gross domestic product at market price 2000, indirect tax 200, depreciation 300, net factor income from abroad NFIA -50, subsidies 25। ठीक है, तो यू कैन नोट डाउन इट। अब देखो न्यूमेरिकल है, जैसे हमारा फर्स्ट वी फाइंड NNP-FC, NNP-FC। ठीक है, तो वी हैव GDP at MP, तो NNP-FC कैलकुलेट करना है इक्वल टू GDP-MP। अब देखो जो हमने पीछे किया था, फर्स्ट है, फर्स्ट कंपेयर करेंगे नेट ग्रॉस, नेट और ग्रॉस में किसका रिलेशन है, डेप्रीसिएशन का, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल सेकंड कंपेयर करना है, देखो फर्स्ट लेटर कंपेयर फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर कंपेयर सेकंड, थर्ड सेम रहेगा, फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे आएंगे। तो फर्स्ट हम कंपेयर कर रहे हैं नेट और ग्रॉस, तो नेट और ग्रॉस में रिलेशन है डेप्रीसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, फिर है नेशनल और डोमेस्टिक, तो नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड विद NFIA, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, पीछे फॉर्मूले भी थे उसमें से आप देख सकते हो, इसीलिए हमेशा व्हाइल आई टीचिंग इन द क्लास, तो ऑल द स्टूडेंट मस्ट हैव पेन, रजिस्टर, so that or notebook, so that you can make, you can write note right in your book, so that after the class you can revise it easily and make your own notes। तो नेट इज नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। नेक्स्ट आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, P प्रोडक्ट ऑलवेज सेम, तो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस आर रिलेटेड ईच अदर विद NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो GDP-MP देखो ये हमारा है GDP-MP, ये ना GDP-MP 2000 माइनस डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन कितना है 300 प्लस NIT, तो NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारा है 200 माइनस सब्सिडीज 25, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा पहले NFIA, तो NFIA है -50 प्लस ब्रैकेट में -50 माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200 माइनस सब्सिडीज 25। ठीक है, तो 200 माइनस 300 1700 माइनस 50 माइनस 175, तो आंसर इज 1450। सेकंड हमें फाइंड करना था NDP-MP। ठीक है, तो यू कैन राइट इट और इजीली एक बार दोबारा कर लेते हैं, देखो NNP-FC फाइंड करना है GDP-MP, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, फैक्टर कॉस्ट मार्केट रिलेटेड NIT, तो माइनस NIT, तो ये 2000 माइनस 300 प्लस माइनस 50 माइनस ब्रैकेट में 200 माइनस 25, तो ये आ गया हमारा 1450 आंसर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है GNP-MP, वी हैव GDP-MP, तो ग्रॉस सेम छोड़ देंगे, नेशनल और डोमेस्टिक, तो नेशनल और डोमेस्टिक रिलेटेड होता है NFIA से, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, तो ये आ गया -50 1950, और थर्ड है NDP-MP,
तो नेट और ग्रॉस, नेट और ग्रॉस कैसे रिलेटेड होंगे? डेप्रिसिएशन से। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, तो -300, ये आ गया हमारा 1700। तो दिस इज द न्यूमेरिकल। तो यू कैन मेक प्रैक्टिस, तो स्टूडेंट कैन नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। कैलकुलेट जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा: रुपीज क्रोर्स, जीएनपी एमपी 5000, एनआईटी 400, डेप्रिसिएशन 300, NFIA net factor income from abroad -100. So students, you can note down this numerical and I will show its solution in the next class, ठीक है। तो GNP FC 5000, NIT 400, डेप्रिसिएशन 300, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -100 और GNP MP कैलकुलेट करना है, NNP MP and GDP FC from the following data, ठीक है। तो that this will be discussed in the next class. तो थोड़ा सा we take quick revision of our today's class and there is any students have any problem. So let us some revise some topic of today's topic और basically ये जो हमारा है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है, एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं न्यूमेरिकल ये। तो नेशनल इनकम के जो बेसिक है हमारे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेट ग्रॉस, नेट और ग्रॉस आर रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन, नेट और ग्रॉस, ठीक है। जैसे सपोज एक पर्सन है, उसने अपनी कार खरीदी 10 लाख रुपए की और वो आफ्टर 1 ईयर कहता है कि माय कार वैल्यू इज 10 लाख, तो दिस इज ए ग्रॉस वैल्यू। नेट वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो सपोज उसकी कार पे 2 लाख डेप्रिसिएशन लग गया, तो नेट वैल्यू इज 8 लाख। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल डोमेस्टिक, तो नेशनल और डोमेस्टिक रिलेटेड होते हैं NFIA से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA और डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA। और नेशनल और डोमेस्टिक रिलेटेड NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा होगा, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, फ्रॉम माइनस टू, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फ्रॉम माइनस टू करेंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेक्स्ट जो इसमें आता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट आर रिलेटेड विद NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स आपको स्टूडेंट्स एज यू नो दैट इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स in which the liabilities to pay the tax falls on one person, another person burden falls on another person, इसीलिए कहते हैं। और एक चीज और स्टूडेंट ध्यान रखो कि every person pay the indirect tax, the area of the indirect tax is very wide। अगर आप किसी पर्सन से पूछोगे सपोज कि if जैसे मतलब नॉट सो मच रिच, या जैसे सपोज रिक्शा पुलर है कि आर यू पेइंग द टैक्स, क्या आप टैक्स पे करते हो, तो जनरली वो कहेगा कि नो सर, अरे सर कहाँ, मैं कहाँ पे करता हूँ, आई एम सो पुअर, ठीक है ना। तो बट एक्चुअली ही इज ऑल्सो पेइंग द टैक्स बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स, तो एवरी पर्सन पे द इनडायरेक्ट टैक्स, सो द एरिया ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी वाइड। उसी और फिर उसके बाद नेक्स्ट है सब्सिडीज। सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक हेल्प
which provided by the government to the producer as well to the consumer. Producer को so that its cost of production fall, जैसे farmers को provide होती है, तो फार्मर्स को प्रोवाइड होती है, तो जो फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे सब्सिडी मिलती है उनको वीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, सो दैट देयर प्रोडक्शन डिक्लाइन, ताकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, ठीक है, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और उनको बेनिफिट हो, ठीक है। और या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को, सो दैट जो पुअर पर्सन है हु कैन अफोर्ड दैट गुड इजीली। जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग व्हीट राइस टू एट फेयर प्राइस शॉप, जिसको जनरली हम बोलते हैं राशनिंग शॉप, राशन की जो दुकान होती है, राशन शॉप होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। वहाँ पर जो है पुअर पर्सन को कार्ड होते हैं अलग अलग, एक होता है APL अबो पॉवर्टी लाइन, तो उनको अलग रेट होता है, और BPL वालों को तो बहुत ही सस्ते रेट पर गवर्नमेंट प्रोवाइड जो है बिल्कुल नॉमिनल रेट पे, जैसे 2 रुपये पर केजी वीट, ऐसे 5 रुपीज, या अभी जैसे पेंडेमिक है तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फ्री, ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री फैसिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके, तो दिस इज टुडेज कॉन्सेप्ट, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम, एंड वन क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, और ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको जरूर करना है, एक बार फिर से न्यूमेरिकल भी रिवाइज कर लेते हैं, और जो एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में प्रोवाइड किया है, दैट यू मस्ट solve this numerical in the next class. I will give you solution and you can check your work. तो जैसे ये था हमारा numerical था, calculate NNPFC, GNPMP, NDPMP from the following data, ठीक है। GDPMP था 2000 करोड़, indirect tax 200, depreciation NFIA and subsidy। तो जैसे NNPFC तो, और हमें given है GDPMP, तो net is equal to gross minus depreciation, national is equal to domestic plus NFIA, factor cost market price NIT, तो factor cost is equal to market price minus NIT। और ये था GNPMP, GDPMP गिवन है, तो ग्रॉस सेम, national is equal to domestic plus NFIA, तो 2000 plus minus 50, 2000 minus 50 1950। और लास्ट है जैसे NDPMP, तो net is equal to gross माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक सेम है, P ऑलवेज सेम, मार्केट प्राइस सेम, तो 1700। ये न्यूमेरिकल ये आपको होमवर्क में गिवन है, तो दिस न्यूमेरिकल you must do this numerical, so that if you have any problem and in the next class I will discuss this numerical. So student, you must study properly and make your handmade notes. I teach all the topics and the numbers of student they have the query कि सर हमारा previous class जो है रह गई थी या etc. तो in the last classes, last 3 or 4 2 or 3 classes से I और मे बी जैसे भी टाइम होगा या 4 से भी देख लेंगे, तो हम धीरे धीरे रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे, so that the students who left their previous classes, so they have the view about the topic, and I will teach revise that topic so that the number of students have query and their query will be solved. ठीक है students, तो and keep studying. Start study properly and make your notes, your own handmade notes, so that you have the practice. And if I think all the syllabus we complete in our classes, so that you do not have any problem in the exam, but you must study properly. All the topic which I teach in the class, and you must study properly, make notes, and you have the study material also provided by SOL, which is very good. And we also make the notes from this. This is very good material.
So student, you must all teach that, and you can download the previous papers also from the SOL site and see how the question asked in the paper. Okay, so this is your today class, and in this class we studied about the basic concept of national income. Okay, in the next class we will discuss about the numerical methods of national income, के how we calculate the net, because steps भी आते हैं पेपर में. So if you know about the numerically, you can also give some numerical example while writing the steps of national income. And we also discuss the steps and precautions also. We do some numerical, so that you have the some idea, and you can do practice of numerical, and if so that you can solve these numericals. And we also do the theory of numerical, जैसे इनके steps and precautions आते हैं पेपर में, some basic concept आते हैं. ठीक है students, तो now in the next class we will meet. मैम प्लीज एंड द सेशन. यस मैम कंप्लीट हो गया है. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ओके मैम. ओके.